Students, today I'm going to explain you about the dimension of business environment. As I have already told you that macro environment or general environment is the factor of the business which is influencing the business but not directly. It is influencing the business indirectly, and the impact of this environment is not only affecting one unit of the business or one firm of the industry, but it is affecting the whole industry. Now, macro environment has five important factors. First is economic factors. Now, what do you mean by economic factor? Consists of economic system, economic policies, and economic condition of the country, and all these three components influence the business. It may prove as threat or can offer new opportunities for the business. Business should regularly scan the economic environment so that the business can avoid the threats and encash the opportunity. Now, as we all know that what is economy, now economic environment, whatever is happening outside the business, whatever is happening in the economy of the business, it is influencing the economic condition of the country, is influencing the business. Major elements of economic environment are socialistic economic system, capitalistic economic system, and mixed economic system. Now, economic policies such as export import policies, taxation policies, industrial policies, etc. Whenever there is some change in the economic policy, that is affecting the business, whether it is the import export policy or taxation policy, जो भी policy हो रही है उससे business को affect करता है, whether good or bad. And economic conditions such as national economy, general price level, rate of interest, ये सारी चीज़ें भी बिजनेस को अफेक्ट करती है. नेशनल इनकम से, जनरल प्राइस लेवल से और रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी बिजनेस को बहुत ज़्यादा फायदा या नुकसान होता है. इसीलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम एक बिजनेसमैन को हमेशा टाइम टू टाइम स्कैन करते रहना चाहिए. अगर इकोनॉमिक कंडीशन इन कंट्री की अच्छी होगी, अगर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, तभी प्रोडक्शन होगा और तभी उन सारे चीज़ों का सेल होगी और तभी इंडस्ट्री में बूम आएगा. और अगर इकोनॉमिक इंडस्ट्री सही नहीं होती और अननेसेसरली प्रोडक्शन होता है तो दैट मे बी अ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस. The decrease in the interest result in increase in demand and the product or vice versa. See, अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो है, अगर कोई किसी चीज़ के लिए फाइनेंस चाहिए होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के कम हो जाते हैं तो फिर उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड बढ़ जाती है. और ठीक इसी का उल्टा होता है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कम हो जाती है. राइज इन इनकम में रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड और वाइस वर्सा. अगर इनकम बढ़ जाती है तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर इनकम कम हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है. हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस. जब महंगाई बढ़ जाती है तो बिजनेस का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, हर एक चीज़ का प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है, वो सारी चीज़ें भी बढ़ जाती है. दैट मीन्स proper scanning of business economic environment is very much needed, and it is playing a crucial role in the business. ये अगर ये अच्छा होता है, अगर if the economic of the country is stabilizing, if the standard of living of the human is increasing, if the income is increasing, then the demand is also increasing. But if the income is decreasing, the demand is also decreasing. Now, social environment. The factor of social environment are traditional values, social trends, fashion,
wishes, hopes, level of education and standard of living. All these forces have impact on business, so it is advisable for the business not to overlook these factors of social environment. See, what do you mean by social environment? जो कि सामाजिक होती है, जिनको इकोनॉमी से शायद कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के बने हुए एनवायरनमेंट होते हैं, वो सारे फैक्टर्स भी, वो सोशल आपका एनवायरनमेंट भी बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है. और उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? ट्रेडिशन होता है, वैल्यूज़ होते हैं, सोशल ट्रेंड होता है, फैशन होते हैं, एजुकेशन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है. ये सारी चीज़ें, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. इनसे भी बिजनेस को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. नाउ मेजर एलिमेंट्स ऑफ सोशल environment, one is tradition. See, as we know that India is a country where many festivals are there. Diwali, Holi, Eid, Christmas, Guru Parv. तो हर एक फेस्टिवल में we know that the business is more, लोग जो ज़्यादा परचेजेस करते हैं और सोशल, इससे बिजनेस को एक अच्छा बूम मिलता है. वैल्यूज एंड सोशल ट्रेंड्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज? हर एक बंदे को, हर एक कस्टमर को पूरा राइट है कि बिजनेस उसको एक अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए विद अ नॉमिनल प्राइस. और एट द सेम टाइम ये बिजनेस की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नॉमिनल प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट जो है सोसाइटी को के लिए दे, सोसाइटी को अवेलेबल करवाए. सोशल ट्रेंड्स, एज वी नो, चेंज इन फैशन. जैसे ही फैशन चेंज होता है, ये सारी चीज़ें भी बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. नाउ इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस. लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल हेल्प्स द बिजनेस टू ग्रो. इंडिविजुअल फ्रीडम क्रिएट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट. इंडिविजुअल फ्रीडम क्रिएट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट इज द मीनिंग कि हर एक कस्टमर को अपना राइट है कि वो क्या खरीदना चाहता है, कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता. सोशल जस्टिस क्रिएट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल जस्टिस इज टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इन लो प्राइस. इक्वालिटी इन वैल्यू. मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय शुड गेट इक्वल सैलरी फॉर सेम वर्क. कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो. मेल और फीमेल सारे एम्प्लॉयज, दोनों ही एम्प्लॉय को उनके काम, अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम सैलरी मिले. और हेल्थ फिटनेस क्रिएट्स द डिमांड ऑफ जिम एंड मिनरल वाटर. एज वी नो दैट नाउ डेज इसमें आपका ट्रेंड्स आ जाता है, जो एज वी नो दैट पीपल आर नाउ वेरी मच फॉन्ड ऑफ देयर फिटनेस. दे वॉन्ट टू बी फिट एवरी टाइम. तो उसके लिए आप देखो, जिम की, मिनरल वाटर की, हाइजीनिक फूड की, ऑर्गेनिक जो है मटेरियल की कितनी वैल्यू हो गई है, कितना डिमांड हो गया है. तो दीज आर दी सोशल इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट इन दी बिजनेस. नाउ टेक्नोलॉजिकल environment. Innovation of new technologies to produce goods and services and operating business. It always some new and better for the business. It may create threat for some business and opportunity for some business. Businessmen should always keep a close eye on it, and the businessmen who understand these changes will well in time are always the first movers and can be a threat for others. See, technological changes are the changes that we know that every day the method of production is changing day by day. हर दिन कुछ नया हो रहा है, कोई नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई नई चीज़ जो है वो बनाई जा रही है. न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन आ गया है, जिससे चीज़ें इजीली और इजी हो जा रही है प्रोडक्शन में, और लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है. और सेम वे बिजनेस को चलाने का भी अब न्यू वेज आ गए हैं. पहले अकाउंट्स के बुक्स मेंटेन होते थे, अब
आपको पता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, थ्रू टेक्नोलॉजी भी यू कैन ऑल्सो मेंटेन दी अकाउंट्स। सेम वे आज आप देखिए कोरोना की वजह से everyone is inside their house, but still हर कोई काम नहीं रुक रहा, टेक्नोलॉजी से सारे काम हो रहे हैं। तो जो बिजनेस मैन जो है ये सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा ध्यान रखता है, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का जो फायदा होता है वो उठा लेता है, और वो दूसरों के लिए एक थ्रेड बन जाता है। जो दूसरे बिजनेसमैन हैं जो ये चेंजेस के साथ कोप अप नहीं कर पाते, वो पीछे रह जाते हैं, और जो बिजनेसमैन इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमेशा ध्यान रखते हैं वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा ले जाते हैं। मेजर एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एज आई से कि हर दिन जो है देयर आर न्यू इन्वेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, कोई न्यू मशीन इन्वेंट हो रही है, इजी टू मेक दी वर्क मोर ईजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो जो ये सारे टेक्नोलॉजी का अडेप्ट कर दे रहा है, वो कर ले रहा है, वो आगे चला जा रहा है। न्यू वेज ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, जो न्यू स्टाइल बिजनेस को चला रहा है, वो टेक्नोलॉजिकली साउंड होके एज कंपेयर टू दी ओल्ड बिजनेस आगे चला जा रहा है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, with the advent of television industry, the cinema and radio industry were adversely affected। जब टीवी में इतने तरीके के न्यू प्रोग्राम आने लगे तो लोगों का इंटरेस्ट जो है रेडियो और मूवी हॉल में कम हो गया। कार्बन पेपर इंडस्ट्री वॉज बैडली अफेक्टेड बाय द इनोवेशन ऑफ फोटोस्टेट मशीन। आप लोगों को पता होगा, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, व्हेन photostat machine was not there, people used to use carbon paper। एक जो मेन पेपर होता था उसके हर एक शीट के पीछे एक कार्बन पेपर रख लेते थे, और उस एक जब वो मेन शीट के ऊपर लिखते थे तो उसके हेल्प से 4-5 शीट्स में वो ऑटोमेटिकली और साथ में लिख सकते थे। तो लेकिन जब फोटोकॉपी मशीन का इन्वेंशन हुआ तो कार्बन पेपर का यूज कम हो गया। नाउ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एज वी नो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मीन्स द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट का विद द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज भी चेंज होती है, और इसका भी नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अगर किसी बिजनेस के प्रति जो है गवर्नमेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड रहा तो बिजनेस के लिए ये अच्छा माना जाता है, बट अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड रहा तो इट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन दी बिजनेस। तो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरियत होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? ऐसा नहीं कि आज एक गवर्नमेंट है कल दूसरी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो है वो स्टेबल होना चाहिए। कंट्री, पीस इन दी कंट्री, कंट्री में शांति होनी चाहिए। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स द कंट्री, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इंडिजिनियस ideologies of various parties, impact of political environment. In 1977, the Janata government adopted a rigid attitude towards the MNC. As a result, MNCs like IBM and Coca-Cola had to ignore India. 1977 में जनता गवर्नमेंट थी, उनका MNCs के प्रति बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं था, वो बहुत ही रिजिड थे टूवर्ड्स दी MNCs। और इसके लिए क्या हुआ, MNC कोका कोला और IBM जैसे कंपनीज ने इंडिया में बिजनेस करने से मना कर दिया। बट जब न्यू गवर्नमेंट आई उन्होंने MNCs को एनकरेज किया, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कोका कोला ने वापस इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही था। ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट थी को हैदराबाद की, उनका ही इंटरेस्ट था, और उन्होंने उधर IT कंपनीज को इतना ज़्यादा इंडल्ज किया कि नाउ टुडे हैदराबाद इज नोन एज साइबराबाद, एंड मेनी IT कंपनीज हैव एस्टेब्लिश्ड देयर ऑफिसेज देयर। नाउ लीगल environment, as we know that legal environment, that there are some policies or
judgment which has been given by the government at local level, state level or country level to standardize the sale and purchase policy and the industrial dispute. And again, businessmen cannot ignore this because it may have positive or negative impact in the business. Major element of legal environment: to act or legislation passed by the government, decision taken by the various commission and agencies, the judgment of the court. Now, impact of legal environment on business. With the इंट्रोडक्शन, जब रिलैक्सेशन हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का और फॉरेन एक्सचेंज का, तो बहुत सारे एमएनसीज ने इंडिया में अपना काम शुरू किया और जिससे क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 5 एनवायरमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट और जनरल एनवायरमेंट विच आर economic environment, social environment, technological environment, political environment and legal environment. Now my next topic is demonetization. As we all know that on November 8, 2016 at 8 o'clock, suddenly our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi has withdrawn the old currencies of 1000 rupees and 500 rupees and introduce new currencies of 2000 rupees and 500 rupees. इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो पुराने करेंसीज थे उनकी वैल्यू मार्केट में जीरो हो गई. इससे फॉर अ टाइम बीइंग जो कैश लिक्विडिटी इन द मार्केट इन द कंट्री जो है वो खत्म हो गई थी. गवर्नमेंट ने लोगों को बोला था, उनको एडवाइस किया था कि जिनके पास भी जो पुराने करेंसीज हैं वो बैंक में जाके उसको जमा करवा के उधर से न्यू करेंसीज ले ले. एज अ रिजल्ट बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई. कुछ दिनों के लिए लोगों को बहुत परेशानी भी उठानी पड़ी, लेकिन इससे एक फायदा क्या हुआ कि जिन्होंने भी अपने घर में ब्लैक मनी छुपा के रखी थी वो सारा ब्लैक मनी उनको बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ा और उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स पे करके उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करवाना पड़ा और इससे गरीबों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ. लेकिन अकॉर्डिंग टू आरबीआई 86% ऑफ जो द करेंसी विच वॉज सर्कुलेटिंग दैट टाइम वेयर विड्रॉन. 2016 में जो पुराने करेंसी थे 500 रुपीज़ के और 1000 रुपीज़ के, दैट वॉज 86%, जो कि अभी हमारी इंडियन इकोनॉमी में उस टाइम 2016 में हमारे इंडियन इकोनॉमी में करेंसीज जो यूज हो रही थी. और उस जब ये विड्रॉ करवाया गया तो 86% जो है वो खत्म, उधर से विड्रॉ कर लेना पड़ा और जो है 1000 रुपीज़ की और 500 रुपीज़ की वैल्यू जीरो हो गई और 2000 रुपीज़ की करेंसी और 500 रुपीज़ की न्यू करेंसी जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी गई. और उस टाइम में जो सर्कुलेशन में 1000 रुपीज़ और 500 रुपीज़ के नोट थे, उस टाइम में उसकी कितनी वैल्यू थी, 15.4 ट्रिलियन रुपीज़. मतलब उस टाइम 15.4 ट्रिलियन रुपीज़ की करेंसी को एकदम से विड्रॉ कर लिया गया था. नाउ फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन. टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स. इससे क्या हुआ कि जिन्होंने भी अपने घरों में कैश रखा था, जिन्होंने भी अपने ब्लैक मनी को रखा था, उनको सबको अपने पैसों को बैंक में वो करवाना पड़ा, उसको बैंक में जमा करवाना पड़ा और प्रॉपर टैक्स देने के बाद ही वो जिन्होंने अपने मनी को इलीगली रखा था और जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स नहीं दिया था उनको टैक्स देना पड़ा. टैक्स इवाशन कंट्रोल मेजर्स. इससे क्या हुआ, सबके जो ब्लैक मनी थे वो बाहर आ गए और इसके बाद से लोगों ने अपने घरों में जो वो ब्लैक मनी छुपाने का जो एक वो था चलन चल रहा था वो खत्म हो गया. चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. इससे वो जो है प्रॉपर
आपका सेविंग का प्रॉपर चैनलाइजेशन हो गया, क्रिएटिंग कैशलेस इकोनॉमी। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा हो गया। गवर्नमेंट को पता लगा कि कितना सर्कुलेशन होता है एक इकोनॉमी में, और लोगों ने उसके बाद से करेंसी को अपने पास रखना कम कर दिया और उन्होंने कैशलेस जो है ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए। होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड स्टिल इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम डू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।